So today we will learn some physics. This is physics. सर फिजिक्स कौन टॉपिक लिखता है? फिजिक्स का टॉपिक तो लिखो. ओके फाइन. इक्वेशंस ऑफ मोशन. या सो देख, बात ये है कि वी ऑलरेडी नो सम फैक्ट्स. ऋषिराज उधर आ जा. So we already take it. Okay. So we already know some facts. What are those facts? Ridhima, are you comfortable? You are Ridhima, right? And where is Diptanshu? So we know certain facts. What are the facts that we already know? The fact that we already know is number one, that in uniform velocity and number two, uniform speed. These two concepts, if we have in our mind clear, then we can understand everything. What is uniform velocity? Equal displacements at equal intervals of time. And these intervals of time, if they made very small, then each of these small intervals in which you will measure the displacements at a particular time means you are measuring the velocity, because displacement by time is velocity, right or wrong? So if at very small instances, suppose this is at a very small instant of time, del t is equals to 0.001 second. Here also del t is equals to 0.001 second. Or maybe you can select del t is equals to 0.00001 second. It doesn't matter to me. I have taught in previous classes that what you need to understand is that you need to understand that at very small intervals of time, at very small intervals of time, if equal displacements are covered, that means at very small intervals of time, if equal displacements are covered, then the velocity is said to be uniform. Yes or no? But what is equal displacement at very small intervals of time? Equal displacement means, as because displacement is a vector quantity, the displacement ka magnitude and displacement ka direction should be same. This same experiment, if you do like this, and if you see that at each small interval of time equal displacements are covered, I will not say equal displacement, I will say equal distances are covered in this case. Sir, why will you not say? Sir, this is also at suppose 0.001 second में 0.001 second में 1 meter distance, और फिर यहाँ पे भी 0.001 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी 0.001 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी 0.001 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी 0.001 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी, यानी हर वक्त वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.001. So that gives me practically 1 meter. This is meter per second. That gives me practically is equals to 1000 meter per second, right or wrong? 1 2 3 1000 meter per second. So 1000 meter per second, 1000 meter per second velocity. No, I will say no. You cannot say velocity. Even I cannot say that the displacements are equal. Why? Because the directions are continuously changing. So I cannot say equal displacement. Maybe the magnitude is same. I will say equal distance. Equal distance at equal intervals of time. Now this can become the example of uniform speed, but not of uniform velocity. Because in uniform velocity, you have to maintain equal displacements at equal intervals of time. So maintaining equal displacements at equal intervals of time doesn't only mean that you will maintain the equal magnitudes.
It means that you will maintain the same direction also. This is the reason why you can say that velocity is also a vector quantity. Because velocity is what? Displacement by time. And displacement is what? Itself a vector quantity. Do you agree with me? Everybody understood? Yes or no? So, velocity is equals to displacement by time. Displacement itself is a vector quantity. So, velocity becomes a vector quantity. Means, uniform velocity means that it is going at a uniform 1000 meter per second का speed से या velocity से at a particular direction. Then only I can say that uniform velocity. Are you getting my point? Otherwise, I can't say it is uniform velocity. Otherwise, I am not capable of saying that it is uniform velocity. If you say that it is going 1000 meter per second in this way, zigzag way, right or wrong? I will say fine, 1000 meter per second, 1000 meter per second, 1000 at each instances. The instantaneous speed is equal. I will say speed is equals to distance by time. Here distances are equal. At each small intervals of time, equal intervals of time में equal distances equal intervals of time में in equal small intervals of time में equal intervals of time में and equal small intervals of time में equal distances cover कर रहा है. Are you getting my point? क्या cover कर रहा है? Equal distances cover कर रहा है. इसको मैं वो बोलूंगा. इसको मैं equal displacement cover कर रहा है नहीं बोल सकता. I cannot. Because to maintain equal displacement at each instant you have to maintain same. Tell me what? Direction. Yes. You have to maintain same direction. Did you understand this concept? You understood? You understood? Huh? You guys understood? Everyone understood this concept? So there is a difference between uniform velocity and uniform speed. As because velocity is a vector quantity, it should be in a particular direction. As because speed is a scalar quantity, if only the magnitudes at each interval are equal, it becomes uniform. Understood uniform? Then what is non-uniform? What is non-uniform velocity? Come on. Let's see. What is non-uniform velocity? What is non-uniform velocity? Opposite of uniform velocity. Yeah, he is correct. Non-uniform velocity is opposite of uniform velocity. Huh? The direction is not free. If unequal displacements are covered at equal intervals of time, that also you can say, or you might say if unequal displacements are covered at unequal intervals of time, or you can say this is number 1, this is number 2, or you can say number 3, if unequal displacements are covered at if equal displacement at unequal intervals of time. इसका मतलब ये हुआ कि unequal displacements are covered at equal intervals of time. अच्छा, मतलब यही एग्जांपल बन सकता है. सर इसको unequal displacement क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं मानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है. 1 मीटर 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 1 मीटर, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है ना. ये समझो, अगर डायरेक्शन अलग है तो इसको मैं ईच इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स बोल सकता हूं, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. ये अलग है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, ये 1 सेकंड में जा रहा है, ये 1 सेकंड में जा रहा है, 1 सेकंड में. तो यहां पे स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड. यहां पे स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकंड. यहां पे स्पीड कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड. तो बार-बार सेम डायरेक्शन में जाते हुए भी मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तब भी बोल सकते हो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल्स मैंने इक्वल लिया है. क्लियर और नॉट? अंडरस्टूड? या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स एट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हां, हो सकता है. ये 2 मीटर को 1.5 सेकंड में ले लो, इन 1 मीटर को
1 सेकंड में ले लो, ये 0.5 मीटर को 3 सेकंड में ले लो, फिर भी तो उल्टा पुल्टा ही आएगा ना। 2 डिवाइडेड बाय 1.5 1/1 एंड 0.5/3 अलग अलग आंसर्स आएंगे सारे। तो हर एक छोटे छोटे इंस्टेंस में मीटर पर सेकंड में स्पीड अलग अलग हो रहा है। एग्री विथ मी? तो अनइक्वल डिस्टेंसेस एट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स एट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ, तुम इक्वल डिस्प्लेसमेंट जा रहे हो सेम डायरेक्शन में, 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, लेकिन ये 0.5 मीटर तुम 3 सेकंड में गए, ये 2 सेकंड में गए, ये 1 सेकंड में गए, तो वैल्यू सेम आएगा स्पीड का, या सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू सेम आएगा। 0.5/3 0.5/2 0.5/1 सेम नहीं आएगा। तो हर एक इंस्टेंट में the velocity is different and hence non-uniform. Why? Because equal displacements are covered at unequal intervals of time. Equal displacements are covered at unequal intervals of time. लेकिन हाँ, तीनों एग्जांपल समझने के बाद if unequal displacements are covered at equal intervals of time, unequal displacement कब कब हो सकता है? either तुम direction बदल दो या फिर तुम magnitude बदल दो। at equal टाइम इंटरवल इक्वल रखो, फिर भी वो अलग अलग वैल्यू देगा। इसके जैसे नहीं, जैसे यहाँ पे इक्वल इक्वल एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स वर कवर्ड at equal intervals of time, and I can call it equal displacements covered because both magnitude, suppose 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter, both magnitude and direction is same, and also at equal intervals of time it is covered. So at each small instant the velocity is, what to say, uniform. Is this clear to you? Let me tell you a little bit more. Let me give you examples. Then you will understand even more. Suppose for example, give me that duster. Can I rub this board? Okay. Okay. See, सिंपल सा फंडा है भाई। तुम यहां पे खड़े हो, ये तुम हो, ठीक है, और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां तुम गए। मैं यहां पे, मैं खुद को थोड़ा हैंडसम बनाता हूं। Panda तो स्केयरक्रो दिख रहा है। मैं स्केयरक्रो ही तो हूं, मैं क्या दिखता हूं? देखो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तुमको, ठीक है, उस तरफ फेस होना चाहिए था। ड्राइंग में मैं माशाल्लाह हूं, क्या बोलूं, ठीक है। एनीवे, तो मैं यहां पे हूं, और सॉरी तुम यहां पे हो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं कि तुमने 1 मीटर गया है 0.5 सेकंड्स में, फिर 1 मीटर गया है 0.5 सेकंड्स में, फिर 1 मीटर गया है 0.5 सेकंड्स में, फिर 1 मीटर गया है 0.5 सेकंड्स में। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा भाई इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, del t। तुम बोलोगे कि सर अब गलत बता रहे हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान से देखो, वो डायरेक्शन भी सेम रखा है। बोला हाँ हाँ सही है भाई। फिर उस तुमने मेरे को बोला सर इधर ऑब्जर्व कीजिए, अब तो काना हो, इधर देखो यहां क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रहा है शालू, ये शालू है, डंडा लेके भाग रहा है लड़कों के पीछे, लड़का आगे आगे भाग रहा है, यह लड़का है। ओके, डंडा लेके शालू भाग रही है लड़कों के पीछे ऐसे। तो 1 मीटर एट 0.5 सेकेंड, 1 मीटर एट 0.5 सेकेंड, ये प्रांजल ने नापा है। 1 मीटर एट 0.5 सेकेंड, 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 1 मीटर एट 0.5 सेकेंड। अरे हाँ सर,
यहां पे आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा अब तो मैं सही हूं बेटा, इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब तू आगे मेरे को बोल सर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मैं चमाड़ मार दूंगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट है बे सर, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है? नहीं है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कांसेप्ट हो सकता है? हाँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कांसेप्ट हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि इट इज अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सर अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल, सर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हो? इक्वल तो है। अबे गधे, इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड खाली इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है। आया समझ बात में? बात समझ में आया? समझ बात में नहीं आता, बात समझ में आता ना। समझ भी अगर बात में आ जाए तो उसके अलग मजे हैं, ठीक है। जो तुम समझते हो वो तुम अगर बोल सको, दैट इज डिफरेंट, दैट इज यू नो गुड। एनीवे, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इस एग्जांपल को मैं यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूं? यस सर। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूं, लेकिन हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकता। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक गोल गोल घूमने वाला सर्कुलर मोशन, सोचो यहां से यहां, 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 यहां से यहां और यहां से यहां, इक्वल पेरीमीटर्स कवर किया है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो? इक्वल पेरीमीटर्स, ये भी ये जितना 0.1 मीटर इन 1 सेकंड, 0.1 मीटर इन 1 सेकंड, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मीटर का सर्कल है, 1 मीटर का पेरीमीटर है सर्कल का, ठीक है। 0.1 मीटर इन 1 सेकंड, 0.1 मीटर इन 1 सेकंड, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 1 सेकंड में 0.1 मीटर नाप के चल रहा हूं। आ रहा है बात समझ में? 1 सेकंड में 0.1 मीटर नाप के चल रहा हूं। क्या इसको मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन हमेशा उसके टेंजेंट से दिखा जाता है। इस पॉइंट से इधर है, 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 यानी हर एक मूवमेंट में डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। गुड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड ये हो सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? और एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं, अगर समझे हो तो ट्रिकी नहीं लगेगा। ये 1 मीटर इन 2 सेकेंड जा रहा है, ये 0.5 मीटर इन 1 सेकेंड जा रहा है, ये 3 मीटर इन 3 सेकेंड, ये 3 मीटर इन 6 सेकेंड जा रहा है, और ये जा रहा है 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? कैलकुलेट करके देख बेटा, है 1/2 हाफ मीटर पर सेकेंड। यहां से इस इंस्टेंट में ये देख 0.5/1 यानी हाफ मीटर पर सेकेंड, ये देख 3/6 यानी हाफ मीटर पर सेकेंड, ये देख 2.5/2 मतलब हाफ मीटर पर सेकेंड। इक्वल डिस्टेंसेस एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो दिख नहीं रहा है, मैंने नंबर्स के जाल में फंसाया तेरे को। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बोल सकता है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। कैलकुलेट, हर एक छोटे इंस्टेंट को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है तो वेलोसिटी, अगर स्पीड कैलकुलेट कर रहा है तो स्पीड। हर एक छोटे इंस्टेंट को नाप के देखना चाहिए, इसलिए तो न्यूटन ने कैलकुलस बनाया। आ रहा है बात समझ में? वो सब छोड़ो, अब देखो कैलकुलस की बातें यहाँ पे क्लास 9th पे करके फायदा नहीं है, लेकिन हाँ जानना, क्योंकि न्यूटन को यही इंटरेस्ट था कि हर एक छोटे इंस्टेंट में जानना चाह रहा था वो, इसलिए उसने कैलकुलस बनाया। ये तो एक बात हो गई। अब मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो।
क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो। अच्छा, डायरेक्शन तो सेम है, फिर क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है? क्योंकि हर एक छोटे में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सही इक्वल नहीं है। ये एग्जांपल है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का। सर डिस्प्लेसमेंट को अनइक्वल बोल रहे हो, आपकी मजाल है, सेम डायरेक्शन में है। अब ये गधे, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ डायरेक्शन से नहीं उसके मैग्नीट्यूड से भी जाना जाता है, राइट और रॉन्ग? मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को सेम नहीं बोल सकते। देख, यूनिफॉर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को सेम होने के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को सेम होना पड़ेगा एट ईच इंस्टेंट और स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Am I being able to make myself clear? तब जाके बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, डायरेक्शन को पत्ता मत दे, खाली मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दे, बन जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं है। सही बात। इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूं मैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके जा रहे हैं। Yes or no? True or false? Am I being able to make myself clear? You understood all these things? अब बेटा सुन मेरी बात ध्यान से। जब होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आ जाता है कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन का। जब होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आ जाता है कॉन्सेप्ट किसका? एक्सीलरेशन का। यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तुम जा रहे हो, तुम वेलोसिटी को चेंज करते हुए जा रहे हो, चाहे तुम मैग्नीट्यूड को चेंज करते हुए जाओ या डायरेक्शन को चेंज करते हुए जाओ, डिस्प्लेसमेंट का तुम वेलोसिटी को चेंज करते हुए जा रहे हो। जब तुम वेलोसिटी को चेंज करते हुए जा रहे हो, तब तुम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। इसी वजह से सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख बात बताता हूं, इसको मिटा सकता हूं मैं, ये समझ में आ गया? देख, देख टॉपिक दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका रिकैप करते करते आधा घंटा चला गया। एनीवे आ गया। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आमा जब वेलोसिटी चेंज हो ही रही है, तो कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बहुत मुझे देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब वेलोसिटी चेंज ही हो रहा है, इसका मतलब यह है सर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब मेरे को मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 0। हाँ, लिख सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी चेंज कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ये समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, शायद इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो मैं बताता हूं, ये है रास्ता, ये है शायद मोटर बाइक पे, जो भी भूसा चला के जा रहा है भाई, चला के जा रहा है। अरे हायाबुसा है, हायाबुसा चला के वो जा रहा है, ठीक है, पूरा स्टाइल से बाल बाल पीछे उड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे शाइन जा रहा है। अब शाइन जब जा रहा है, तब मैंने उसको नोटिस किया कि उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। क्या है उसका वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड। जब पहला वेलोसिटी हम नोटिस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यू मींस इनिशियल वेलोसिटी। यू मींस क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने नोटिस किया 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से वो जा रहा है, मतलब उस इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ये समझ में आया ना? इसी वजह से तुम लोगों ने इंस्टेंटेनियस का कांसेप्ट सीखा है। उस इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अरे वो तो यहाँ पे भी तो फिर से वो बाल पीछे उड़ रहे हैं और पूरा सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम तो जाए कहीं, वही होगा, हो जाएगा।
देख, मतलब खो नहीं जाएगा, कहीं पे खो जाएगा किसी की आंखों में, देख थोड़ी देर बाद एक लड़की देख के स्पीड बन गया। सही बोला है, सही बोला, ये सच में क्या होगा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अरे ये तो 5 मीटर पर सेकंड में ही है, तो चाहे मैं इसको अब यहां से यहां तक मैं देखा कि 5 मीटर पर सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी में देखा v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब v माइनस u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम बाद देखा सर? 2 सेकंड बाद देखा। क्या फायदा देख के? ये तो जीरो आ रहा है, जीरो बाय टाइम, यानी मतलब चेंज ही जीरो आ रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ही जीरो आ रहा है, एक्सीलरेशन तो जीरो हो गई, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्मली जा रहा है बंदा। अच्छा चलो इस इंस्टेंट को भूल जाते हैं। अब यहां पे खड़ी है सुंदर कन्या। स्पीड ऑटोमेटिक बन गया। सर प्रांजल कर रहा है। ये है सुंदर कन्या, बाल गुजा रही है अपना। ये देख के शायद को आ गया जोश। ये कन्या देख के जोश आया तेरे को? हाँ? ये है टेस्ट तेरा, ठीक है कोई बात नहीं। अबे हंसो कम, समझो ज्यादा। ये कन्या देख के शायद को आ गया जोश, ठीक है। मैं देखता हूं कि वो यहां से स्टार्ट करने के बाद यहां पे, अरे यार बाइक बन जा, हाँ बाइक, कुछ भी बाइक वाइक है, यहां पे वो कन्या को दिखाने के लिए उसका वेलोसिटी बन चुका है 100 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, बहुत तेज हो रहे हो, हैं? तेज हो रहे हो, 100 मीटर पर सेकेंड। चलो ये अनरियलिस्टिक नहीं पकड़ते, हंसो कम, अनरियलिस्टिक कम नहीं पकड़ते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड कन्या को देख के बढ़ाने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगा होगा ना। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, v is equals to 10 meter per second. So change in velocity is equals to 10 meter per second minus 5 meter per second, which will give me 5 meter per second. Yes or no? This is change in velocity. अच्छा let's take it ना 6. I don't want to repeat numbers. Confusion होता है बच्चों को। तो anyway, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना था? ये तेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तूने अब ये है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितनी जल्दी जल्दी वेलोसिटी को चेंज किया। वेलोसिटी चेंज तो किया, कितनी जल्दी किया? शायद ये चेंज 3 सेकंड में किया होगा, राइट और रॉन्ग? या फिर शायद ये चेंज 8 सेकंड्स में क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शायद ये चेंज कितने सेकंड्स में क्या होगा? 8 सेकंड्स में क्या होगा? तो ये चेंज अगर उसने 8 सेकंड्स में किया है तो बंद करो उसको। हाँ, ये चेंज अगर वो 8 सेकंड्स में किया है, इस चेंज को उसने कितने सेकंड्स में किया है? 8 सेकंड्स में किया है, तो रेट ऑफ चेंज हो जाना चाहिए चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, है कि नहीं? पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा फॉर्मूला हो गया, रखो उसको। इसका मतलब तुम्हारा पूरा फॉर्मूला हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, है कि नहीं? मजा आया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ के? हाँ, क्या होना चाहिए फॉर्मूला? a is equals to v minus u by t। यूनिट क्या होना चाहिए? यहां पे तो आ गया तुम्हारा हाफ, है ना? हाफ यूनिट क्या होना चाहिए? देखो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड ही, राइट और रॉन्ग? टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, यानी मीटर बाय सेकेंड, यानी इज इक्वल्स टू मीटर बाय सेकेंड इनटू 1 बाय सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई अगर रास्ता में पूछ दे, ये हुई आते जाते हंसते खेलते कि बता एक्सीलरेशन का यूनिट में सेकेंड स्क्वायर क्यों आ जाता है और सेकेंड क्यों नहीं होता है, ज्यादातर बच्चे ये क्या पूछते हैं? लेकिन तुम लोगों को ऐसा होगा?
राइट और रॉन्ग? तुम लोगों को समझ में आ गया व्हाट इट इज, व्हाई इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इज दिस क्लियर टू यू? सो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू v minus u by t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किन कंडीशंस में एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है? एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है अगर v और u इक्वल बन जाए। कौन से कंडीशन में v और u इक्वल बन सकता है? जब वो सुंदर कन्या को देख स्पीड नहीं बढ़ाएगा, राइट और रॉन्ग? या फिर वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा, यानी कि ये जो चेंज है यूनिफॉर्म रहेगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। आया समझ में बात? क्या मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? इज दिस क्लियर टू यू? तो इस वीडियो में एक्सीलरेशन आया ना, अच्छे से समझ, इसको यहीं तक रखते हैं, बंद कर दो वीडियो।